मैम गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। हाँ जी, good morning students. So I hope you are all fine. यस मैम। All right, that is wonderful. So students, since आज के lecture में it won't be possible that we have a discussion or anything like that, any activity which requires us to sit face to face, right? So I thought we can have a GK quiz today, right? So I'll start with a logo quiz and then we can move on to GK quiz later. So I'll share the screen here. You can answer by unmuting yourself, or you can also answer by letting me know in the chat what the answer is, right? उससे अच्छा राजू है। All right, I have taken the screenshot of all the participants, so you don't have to worry about the attendance. Hanji, good morning, Suraj. Okay, so I'm going to share the screen now. So get ready to answer. All right. Hanji, बच्चे screen visible है? Yes, ma'am. All right. Okay, so let's start. So can you guess ये कौन से brand का logo है? So there is a time as well. Time मतलब आपका clock हो रहा है कि कितना time आपको लग रहा है आंसर देने में? हाँ जी. Yes, any idea? Or you can make a simple, you can make a guess as well. Xerox. Okay, let's check. Very good, that was correct. This is easy. Toyota. Okay, wonderful. So I मैम want टोयोटा। everyone to answer, right? ये आपने movies में देखा होगा ये वाला logo. 20th Century Fox. Are you sure? मैम मेट्रो गोल्डवाइन मेयर। Okay. So one more chance. DreamWorks. DreamWorks, right? Yes. आपको उसका मेट्रो गोल्डवाइन का याद होगा, वो लायन वाला आता है. It used to be there if you have seen that cartoon Tom and Jerry, right? तो उसकी बिगनिंग में आता होता है. एंड 20th Century Fox का अगेन वो बड़ा बड़ा सा आई थिंक 20th century लिखा होता है, उसका आता है, राइट? हाँ जी. So this one is easy. IBM. Correct. IBM. What about this one? IBM। Symantec. सूरज अपना म्यूट रखो बेटा. हाँ जी. What about this one? मैम वेरिजोन। Verizon. आई थिंक। Everyone no, ma'am. agrees. Anybody else? अच्छा, not. हाँ जी. Good morning, Samuel. Symantec का. Semantic. Yes, ma'am. So semantic is not correct. One more chance. मैम फोर्थ वाले पे क्लिक करना। Verisign. फोर यस यस मैम। के Verizon. हाँ मैम जी श्वेता, वेरिजाइन सेम है आपका. ओके, करेक्ट. यस मैम। All right. So next, move on to the next question. What about this one? And Del Monte. Del Monte. चलो चेक कर लेते हैं. Yes, that is correct. हाँ जी, ये वाला तो आता होगा. मैम BMW है. BMW। All right. ये भी easy है. Cartoon Network. मैम यस यस कार्टून नेटवर्क। All right. What about this one?
सेकंड वाला चिक्विटा, क्यूटा मैम डोल थर्ड मैम थर्ड थर्ड ऑप्शन। थर्ड वाला चिक्यूटा मैम। मैम यस चिक्विटा, मैम थर्ड। चिक्विटा। नहीं मैम थर्ड थर्ड मैम। दोनों में है। अच्छा, दोनों के रिस्पेक्टिव मुझे बता दो चैट में कौन किसको कर रहा है, फिर मैम जिसकी 50% वोट है मैम चिक्यूटा पर। मैम चिक्विटा, थर्ड मैम जिसकी थर्ड मैम मैक्सिमम थर्ड वोट्स होंगी वी कैन गो विद दैट, राइट? मैम थर्ड डोल। सो थर्ड के लिए हाउ मेनी सपोर्टर्स? मैम मेरा नहीं है मैम, मैं चिक्यूटा। ओके, मैम यस चिक्विटा। so 2 people for this and 2 people for dole. चलो ये करके देख लेते हैं। ओके, so this is correct. मैम गलत। तो ओके, ये भी इजी है, याद होगा आपको। मैं सोनी रोजन का है तो इलेक्शन का। सोनी रिक्सन, that is correct. All right. So you गेम ही want, फिनिश। हाँ जी फिरोज। मैम कुछ नहीं। Okay. So Kushal is new to the class, right? हाँ जी कुशल, am I audible? All right. So I believe this is your first class with me. So I'll just briefly tell you what we usually do in this class. So this is your mentorship and professional development lecture, right? So even for others, just a reminder. So we are going to focus on basically your professional development, your interview skills, how you speak, how confident you feel while answering, so on and so forth. And of course, in addition to that, we are going to be taking a look at general knowledge and current affairs, right? So as to keep you informed about what is happening around. Okay. So okay, bache, you want another logo quiz or do we do the GK quiz now? हाँ जी, मैम जीके क्विज। जीके क्विज कर लें, चलो ठीक है। ओके, सो दिस वाज इजी, ठीक है। विच वन इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? पैसिफिक। मैम अटलांटिक। अटलांटिक। मैम अटलांटिक। नहीं बेटा, अटलांटिक की थोड़ा मैम। याद करो कौन से ओशंस है। मैम सी और डी में से है। सी और डी में से अटलांटिक। चलो अटलांटिक की मुझे थोड़ी लोकेशन बताओ, कहाँ पे है? मैम आर्कटिक। साइड में है, बगल में। मैम आर्कटिक इज करेक्ट। Arctic is the right answer. देखो Atlantic is between Americas on one side, North America and South America, and Europe and Africa on one side, right? तो उनके बीच में जो water body है, that is Atlantic Ocean. So it is not the smallest. Smallest is Arctic, and the largest is, this is easy. पैसिफिक। Very Pacific. good. Pacific, right? So अगर आप वैसे तो हम we are so used to looking at the world map, ठीक है, ऐसे पूरा वो जो स्प्रेड आउट होता है। इफ यू चेक द ग्लोब, तो ऑलमोस्ट जो हाफ द हमारा एरिया ना, दैट इज कवर्ड विद ओशन, ठीक है। तो एंड वो सारा जो इस साइड पे तो पैसिफिक ओशन ही है ज्यादा। फ्रॉम लेट से ऑस्ट्रेलिया कैसे, अगर पीछे से आप देखो टिल अमेरिका, दैट होल वाटर बॉडी इज पैसिफिक ओशन, राइट? जो हमारे इंडिया के साउथ में सराउंड करता है, दैट इज द इवन साउथ एशिया को सराउंड करता है नीचे से, दैट इज द इंडियन ओशन, राइट? एंड आर्कटिक ओशन इज एट द टॉप, जहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है ना, उसके अराउंड जो ओशन है, दैट इज द आर्कटिक ओशन, राइट? Okay, so which country gifted the Statue of Liberty to USA in 1886? So this is very France। interesting. Very good, France. Most people don't know कि जो Statue of Liberty था वो USA को गिफ्ट मिला था, right? We tend to believe कि वहीं पे बना था। So इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। In case you ever get the time, you must read it, right? So Dead Sea is located between which two countries? हाँ जी, make a guess. मैम इजराइल एंड जॉर्डन। मैम इजराइल एंड जॉर्डन। Israel and Jordan. All right. So just for remember it, let's just check its location as well. मैम आई थिंक जॉर्डन एंड फर्स्ट वाला है। बिल्कुल, देखो यहाँ पे इजराइल है,
इधर जॉर्डन है एंड दिस इज डेड सी, राइट? सो एक अच्छा एक इन वन ऑफ द लेक्चर्स वी कैन आल्सो डिस्कस द पैलेस्टीन इजराइल सिचुएशन। आपने सुना होगा ना, इजराइल और पैलेस्टीन काफी उनका डिस्टर्बेंस होती है, काफी कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, Yes, ma'am. राइट? सो उसका भी हम डिस्कस करेंगे, बट यस यू कैन रिमेम्बर दिस एरिया ऑन मैप बिकॉज यहाँ पे इजराइल है, दिस इज वेस्ट बैंक एरिया, दिस इज द गाजा स्ट्रिप, ठीक है? तो पहले क्या था, दिस होल एरिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यूज्ड टू बी पैलेस्टीन, बट ग्रेजुअली इजराइल टुक ओवर, राइट? तो अभी तो पैलेस्टीन बहुत ही छोटा सा एरिया रह गया है, ठीक है? तो उसमें दैट इज यू नो अ टॉपिक फॉर अनदर क्लास, बट यस हियर द डेड सी इज देयर। सो एनी आइडिया व्हाई इट इज कॉल्ड द डेड सी? हाँ जी, मैम जॉर्डन एंड इजराइल। हाँ जी बच्चे, वो तो हो गया फिरोज, जॉर्डन एंड इजराइल इज द करेक्ट आंसर। सो व्हाई इज इट कॉल्ड द डेड सी? कुछ चलो गेस मार दो, फिर इसके बाद में इसका आंसर चेक करते हैं। मैम इसमें कोई फिश या कोई प्लांट्स नहीं हो गए शायद। यस विक्रमजीत, यू आर करेक्ट। सो इस अच्छा उसका रीजन क्या है? लेस एक्वेटिक एनिमल्स इन इट, यस दैट इज करेक्ट, कि उसमें ना कोई लाइफ सस्टेन नहीं होती। सॉल्ट का ज्यादा वेरी गुड, यस बहुत ज्यादा सॉल्टी है, एंड इसीलिए क्योंकि हिंदी का भी आ रहा है, हाँ इसीलिए है बिकॉज अगेन बिकॉज सॉल्ट बहुत ज्यादा है, ऑल्सो कॉल्ड द सॉल्ट सी, इज अ सॉल्ट लेक बॉर्डरिंग जॉर्डन टू द ईस्ट एंड इजराइल टू द वेस्ट, राइट? सो इट्स surface and shores are 427 meters below sea level, which is the earth's lowest elevation on land, right? so इसका एक ये भी है कि it is जो सी लेवल होता है ना, बेसिकली हमारा सी लेवल से हम किसी भी एरिया की एलिवेशन को काउंट करते हैं। जैसे अगर आप पंजाब की बात करो तो पंजाब की जो ऑल्टीट्यूड कह लो या जो हमारी एलिवेशन एवरेज है, दैट इज अराउंड 200 to 300 meters above sea level, राइट? सिमिलरली जैसे एवरेस्ट की हाइट की बात होती है ना, इट इज अराउंड 8 किलोमीटर्स अबव सी लेवल, तो वो सी लेवल से हम कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना है, ठीक है? सो सी लेवल इज वन, मीन सी लेवल एंड एवरेज सी लेवल इज कंसिडर्ड। तो डेड सी के केस में क्या है कि वो सी लेवल से भी बिलो है, right? It is 427 meters below sea level, right? So it is the lowest elevation on land and it is 306 meters deep and a hypersaline lake in the world, किसके 34.2% salinity है, ठीक है? क्योंकि salinity ज्यादा है इसीलिए इसमें कोई एनिमल्स या कोई भी वो फ्लरिश नहीं कर पाते, ठीक है? एक इसका एक ये भी फैक्ट है कि इतनी सलाइन है कि इसमें ना वी कैन नॉट यू नो लेट्स से ड्राउन बिकॉज द वाटर इज सो डेंस कि आप इसमें फ्लोट ही करोगे, right? So it has, excuse me, it has a density of 1.24 kilograms per liter, right? Which makes swimming in its water similar to floating, ठीक है? एंड इसका कुछ और भी बताया हुआ है कि it is used for making cosmetics and herbal sachets, right? एंड अच्छा इसका ये भी रीजन बताया कि इतना सलाइन क्यों है, क्या होता है इसके, क्योंकि इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर बिगर वाटर बॉडी। बाकी वाटर बॉडीज में क्या होता है कि वो उनका ना वाटर फिर भी थोड़ा चेंज होता रहता है, इसमें क्या है बाकी जगह से अगर पानी आता है, रेन वाटर आता है, पानी इवेपोरेट करता रहता है, सॉल्ट पीछे रहता जाता है, इसीलिए ये इतना सॉल्टी है, राइट? बाकी कोई अगर आप रिवर्स की बात करें या लेक्स की बात करें ना, उनका वाटर काइंड ऑफ चेंज होता रहता है, इट कीप सर्कुलेटिंग, इधर दे आर कनेक्टेड टू अदर वाटर बॉडीज, और उसका वाटर लेवल ही कुछ ऐसा होता है कि पूरी इकोलॉजी वैसी है कि उसका वाटर ना स्टैग्नेंट नहीं रहता, इट कीप्स चेंजिंग। इन दिस केस क्या है, पानी इसमें आ जरूर रहा है, इन्फ्लक्स हो रहा है, बट वो इवेपोरेट होता जाता है, जिसके कारण ये इतना ज्यादा सॉल्टी बन चुका है, राइट? All right, so let's get back to our questions. In which ocean Bermuda Triangle region is located? Yes, this should be easy. हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने ये सुना तो होगा बर्मुडा ट्रायंगल का, काफी वेरी गुड आर्यन, इट इज इन द अटलांटिक। ओके, हैव यू हर्ड ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल? यस मैम। Right. Why is it famous?
इतनी उसकी मतलब हाइप क्यों है? हाँ जी, एनीवन? कोई अगर आपने डिस्कवरी पे शो देखा हो, कुछ भी कभी इसके बारे में सुना होगा? नो? सो बेसिकली आई इसका ये है कि इस एरिया में ना, इट्स इन द अटलांटिक. लेट्स चेक द लोकेशन. This is better, right? So if you notice, it is somewhere over here. There is Florida, right? So ये नॉर्थ अमेरिका की ईस्ट साइड पे है, ठीक है. इधर ही कहीं न्यूयॉर्क भी है, राइट? सो यहाँ पे ये थोड़े से कैरिबियन आइलैंड्स हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं. नंबर ऑफ प्लेन्स हैव गॉन मिसिंग हियर, राइट? सो व्हाई इज इट कंसिडर्ड डेंजरस? कुछ आई एम नॉट श्योर कि इसका रीजन एग्जैक्ट क्या है. कुछ रीजन है कि मे बी इट इज related to the pull of gravity over there, right? So यहाँ पे aircraft and ships have disappeared under mysterious circumstances, and most reputable sources dismiss the idea that there is any mystery. No doubt there have been a lot of studies have also been done कि ऐसा क्यों हो रहा है, right? काफी इसके explanations भी दिए गए हैं कि कुछ कह लो मे बी ह्यूमन एरर के कारण हुए एक्सीडेंट्स, कुछ कह लो कि वेदर ही खराब था उसके कारण हो गए, राइट? देन सम पीपल डू से कि यहाँ के कुछ इसका ना मतलब एरिया वैसा कि कुछ ग्रेविटी का भी एक्शन वैसा होता है, वेदर भी वैसी होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है जिसके कारण कि इस एरिया में पर्टिकुलरली बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं, राइट? सो इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड मोर अबाउट दिस वन एज वेल, राइट? So which country is known as the playground of Europe? हाँ जी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड. ओके, आंसर ही विजिबल हो गया. स्विट्जरलैंड एंड इटली. यस स्टूडेंट्स? स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड, वेरी गुड. सो एनी आइडिया व्हाई? थोड़ा सा यू कुड यूज लॉजिक. आपको थोड़ा इसका आइडिया होगा कि क्यों कहते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, क्यों कहते हैं उसको? मैम क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ गेम्स खेले जाते हैं. नहीं, दैट वोंट बी. आई थिंक नंबर ऑफ गेम्स नहीं है इसका रीजन. वहाँ की कोई मिलिट्री होगी तो वो वहां पर तोप ली जाएगी शायद. आई थिंक इट इज मोर ड्यू टू इट्स जो इसकी ज्योग्राफी है उसके कारण होगा इसका रीजन. Okay, so various adventure activities are also there. Okay, so this is interesting that a writer Leslie Stephen called it so in his book. तो उससे ये phrase famous हो गया. And okay, country offers various adventure activities that prove it. All right, so Amrinder, I think you were right that this is why it is called the playground of Europe. So I was more I knew more about its tourism and I did not know in particular कि यहाँ पे काफी सारे adventure sports भी हैं. All right, so which country is known as the land of rising sun? मैम जापान. जापान. Very good. So again, why is it called so? मैम सबसे पहले यहाँ पर ही सनराइज दिखता है. बिल्कुल, वेरी करेक्ट. आपने इवन न्यू ईयर पे भी देखा होगा, वो रात को सारा आता है ना न्यू ईयर का शो, कहाँ पे न्यू ईयर हो गया, राइट? सो इवन इन दैट जापान एंड न्यूजीलैंड, ये बिल्कुल ही हमारे ईस्टर्न मोस्ट है कंट्रीज इफ वी आर लुकिंग एट द वर्ल्ड मैप, राइट? सो यहाँ पे सबसे पहले हो जाता है. एंड दिस इज जापान का तो ये नेम भी एक मॉनिकर भी है. विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स? हाँ जी. थाईलैंड. नहीं, थाईलैंड नहीं है इसका आंसर. भूटान. Yes, you are correct. Bhutan. Bhutan, right? स्नोई हट. So any idea why would that be? उसमें थंडरस्टॉर्म ज्यादा आते होंगे. Extreme and large thunderstorms which wash via the valley from the Himalayas. It was believed that the sparkling light of a thunderbolt was the red fire of a dragon, right? So the Druk is a Bhutanese methodological thunder dragon and has a
Bhutan and अच्छा इनका even national symbol is related to this, right? So एक इनका national symbol is also a dragon, and that dragon is also linked to thunderbolts. So which continent has the highest number of countries? Ma'am, Asia. Asia. Are you sure, Asia? Yes, ma'am. Ma'am, What North about America. Africa or Europe? मैं यूरोप क्यों होगा? क्यों बेटा, यूरोप में भी काफी कंट्रीज हैं. Same is true for Africa. North America में नहीं है because we know there is we have Canada, we have US, right? Then we have few North America में तो usually इन्हीं को ही count करते हैं ज्यादा. फिर सेंट्रल अमेरिका आ जाता है. तो एशिया में कौन सी कंट्रीज है, कौन सी आपको पता है? यूरोप ही होगा. एशिया में तो सिर्फ ज्यादा 5-6 कंट्रीज हैं. देखो ना, एशिया में चाइना ही कितना एरिया ले रहा है, ठीक है. देन नो डाउट वी हैव इंडिया. फिर साउथ ईस्ट एशिया में भी काफी आ जाती हैं, क्लस्टर आ जाता है. देन जापान इज आल्सो कंसिडर्ड एन एशियन कंट्री ओनली, राइट. फिर और क्या है, मंगोलिया है, थोड़ा सा पार्ट ऑफ रशिया है, राइट. बट यूरोप और अफ्रीका में बहुत सी छोटी छोटी कंट्रीज हैं. सो आंसर इज आल्सो अफ्रीका, राइट. Let's just check the Africa map. See, so in this you will notice a lot of tiny countries. See, इस area में ही कितनी है छोटी छोटी countries, right? Yes, ma'am. Okay, Yes. so in which country white elephant is found? In Thailand. Yeah. Okay, Thailand. Let's check. That is correct. So the answer is Thailand. So total number of oceans in the world is, अभी हमने पढ़े थे इनके names. 7. Ma'am, 7. 7 होंगे. 7. 3. 5 है. Let's revise their names, right? So 5 पता वैसे usually 4 consider करते हैं, that we have Arctic, we have Atlantic, we have Indian and Pacific. So 5th एक जो हमारा साउथ पे है अराउंड द साउथ पोल, उसको ओशनिया कह देते हैं, ठीक है. उसको 5th ओशन कंसिडर कर लेते हैं. बट यूजुअली like what I have read in school there are 4, and then I also have read कि कई जगह पे इसको 5 भी कंसिडर करते हैं, right? So which country is known as the land of 1,000 lakes? So again, the reason is that there are a lot of lakes in that country, right? So which country is that? Ma'am, Finland. Finland. All right, that is correct. So which plateau is also known as the roof of the world? Yes, Ma'am, roof of the Pamir. world किसको कहते हैं? हाँ जी. 4th वाला मैम. Okay, right. वैसे even for this इन्होंने तो वैसे तिब्बत को कंसिडर किया जाता है प्लेटो, क्योंकि वो सारा रीजन ना, जैसे नो डाउट इट्स एट अ हाइट, बट काफी सारा रीजन ना प्लेन भी है. सो जो पामीर है, इट इज पार्ट ऑफ दैट एरिया. But yes, according to this website, they have named it as the roof of the world, right? So the world's longest straight road without any corners, बस एक पूरी straight road है, वो कहाँ पे located है? Ma'am, Saudi Arabia. Okay, but Saudi Arabia is a very Australia. comparatively Ma'am, small Australia. country, right? Ma'am, Australia. Okay, so the answer is Saudi Arabia. All right. So इसका check भी कर लेते हैं वैसे. Longest straight road. It was without corners. All right, so it is Saudi Arabia's Highway 10, longest stretch of completely straight road, right?
and it is around 256 kilometers and cuts through the Rub al Khali desert. All right. ओके सो ऐसे है कि इसमें से कोई डाइवर्जन नहीं है. यस दैट माइट बी, दैट इज व्हाई इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया या यूएस नहीं है, क्योंकि वहां पे तो रोड्स पे मतलब कोई ना कोई डाइवर्जन तो होगी, राइट? क्योंकि कुछ मतलब कोई भी ऐसा एरिया है कि बिल्कुल प्लेन हो जहाँ पे कुछ आता ना हो, हर जगह पे स्मॉल छोटे छोटे टाउन्स तो है ही है. सो विच वन इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? हाँ जी, सो आइलैंड इज यू नो लेट्स से area of land which is surrounded by water on all sides, right? So biggest island कौन सा considered होता है? हाँ जी, हम ग्रीनलैंड. Greenland. All right, that is correct. So in which year Hong Kong became a part of China after British rule? हाँ जी, मैम 1989. 1989. 89. 1982. Okay, actually the answer is more recent, 1997. So इसके भी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है एंड यू कैन रीड इट. अगर आपने न्यूज में सुना होगा, चाइना में ना बहुत इशू होता है कि हांगकांग में भी सेम रूल Yes, अप्लाई ma'am. करने हैं. न्यूज में पढ़ा होगा, ठीक है? Yes, हाउएवर ma'am. हांगकांग Yes, रेजिस्ट ma'am. दैट, क्योंकि हांगकांग क्या है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 और आई थिंक वर्ल्ड वॉर 1 इसको एक वो बना दिया था, इस एरिया को एक कह लो कि एक ब्रिटिश को इसका केयर टेकर बना दिया था कि इट वाज नॉट देयर प्रॉपर कॉलोनी. इंडिया जैसे प्रॉपर कॉलोनी थी, यहाँ पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे, पर इस एरिया को ना सिर्फ ब्रिटिश लाइक दे वर द केयर टेकर्स काइंड ऑफ, कि सिर्फ सुपरवाइज करना है, कंप्लीटली इन द सेंस रूल नहीं कर रहे थे, ठीक है? बट ना ही हांगकांग वाला एरिया कंप्लीटली इंडिपेंडेंट था. तो यहाँ पे ना ज्यादा ब्रिटिश सिस्टम फॉलो हो रहा था अबाउट द गवर्नमेंट, अबाउट एवरीथिंग, राइट? नाउ चाइना इट्स अ कम्युनिस्ट नेशन, ठीक है? यहाँ पे कम्युनिज्म फॉलो हो रहा है. कम्युनिज्म इज के एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, कि कहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी, कौन सी फैक्ट्री क्या बनाएगी, ठीक है? वर्कर्स क्या कैसे काम करेंगे, मतलब वहां पे ना लेस ऑफ प्राइवेट वो होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर होता है, एंड गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है. आपने सुना होगा चाइना में जो है कि वो उनका अपना सर्च इंजन है, वहां पे गूगल नहीं यूज होता, ठीक है? वहां पे Yes, ma'am. यूट्यूब नहीं अलाउड, दे हैव देयर ओन वर्जन फॉर यूट्यूब, राइट? Similarly, you might have heard for Facebook, Twitter. I am sure Instagram भी वहाँ पे allowed नहीं होगा, right? Snapchat, कोई भी ऐप जो Yes, normally everybody else is using वहाँ पे वो allowed ही नहीं है. They have their own versions for the same. Twitter का भी उनका अपना एक कोई है कि सेम मतलब सेम सारा कुछ होगा प्लेटफॉर्म के, आप ऐसे ट्वीट कर सकते हो, बट इट इज अगेन चाइनीज. वाई? बिकॉज सी दीज आर यूएस कंपनीज, ठीक है? तो अगर ये इनको अलाउ करेंगे ऑपरेट करना, इन पे वो पूरा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सिमिलरली जो मीडिया है सारा स्टेट कंट्रोल्ड है. कुछ भी वहां पे अगर कुछ अलग कुछ भी मतलब कह लो प्रोटेस्ट वगैरह भी होते हैं ना, उसकी न्यूज वो बाहर ही नहीं आने देते. आपने इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखा होगा अभी कोविड के टाइम में, ठीक है? कोविड का उन्होंने पता लगने ही नहीं दिया कि कुछ ऐसी चीज हो रही है. कैसे पता चली हमें? लास्ट ईयर इफ यू रिमेम्बर इन जनवरी suddenly we were getting these pictures in the media that चाइना में ओवरनाइट बहुत बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ठीक है? इट वाज मिड जनवरी, आई रिमेम्बर. तो ये काफी पिक्चर्स ना वायरल हो गई थी, सैटेलाइट इमेजेस थी कि ये यहाँ पे पहले तो ये था नहीं, बट 2-3 दिन बाद देखो बहुत बड़ा हॉस्पिटल ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, राइट? यू कैन से एज मतलब एज बिग एज हमारे, तो इतने मतलब उतने स्केल का शायद हॉस्पिटल है ही नहीं है वहां पे, मतलब टेम्पररी ऐसे बन गया. दैट इज व्हाट गॉट पीपल वरिड कि ऐसे स्ट्रक्चर्स क्यों बना रहे हैं, ठीक है? And then so on so forth, gradually the news came out that there is something like this called coronavirus. एक ऐसा न्यू फ्लू आया which is fatal and जिसके ऊपर कोई भी जो existing medicines है वर्क नहीं कर रही. See, first case came around in November or December, जो अभी हमें पता चल रहा है as per the reports, right? But news Ma'am, became viral. December. मतलब हाँ दिसंबर. वैसे जो अभी एक ना ऑक्सफोर्ड की भी आई है, उनकी रिसर्च आई है, दे आर सेइंग कि पीपल हैड दिस कोविड ये वाला वायरस इवन वे बैक इन अगस्त 2019, कि तब इसकी ना बिगिनिंग हो गई थी. बट बाकी जैसे हमने पढ़ा कि ये वायरस म्यूटेट होता है, ठीक है? इट हैज बीन म्यूटेटिंग एंड इट हैज बीन चेंजिंग इट्स फॉर्म. सो व्हाट हैपेंड, मतलब इट मस्ट हैव स्टार्टेड वे बैक देन इट स्टार्टेड म्यूटेटिंग एंड इट टुक ऑन मोर फेटल टर्न टुवर्ड्स दिसंबर, ठीक है? आफ्टर दैट
जनवरी में जाके इनको न्यूज ये बतानी पड़ गई, एंड देन WHO की टीम वहां पे इमरजेंसी मीटिंग के लिए गई थी, ठीक है। दे मेड दिस न्यूज पब्लिक टू द होल वर्ल्ड दैट देयर इज समथिंग लाइक दिस। वुहान जो एरिया था जहां से स्टार्ट हुआ है, वहां पे इन्होंने एकदम से लॉकडाउन लगा दिया। एंड उससे पहले ही उनका एक फेस्टिवल होके हटा था, आई थिंक द चाइनीज न्यू ईयर में भी, जिसमें कि बहुत से लोग आए थे, एंड ऑल दोस पीपल देन वेंट बैक टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स एंड मे बी इवन रिस्पेक्टिव कंट्रीज, बिकॉज इवन चाइनीज आर लोकेटेड एवरीवेयर। जैसे इंडियन इमिग्रेंट्स काफी जगह गए हैं, सेम इज ट्रू फॉर चाइना, एंड दैट इज हाउ द होल पैंडेमिक स्टार्टेड। उसके बाद से तो आपने जर्नी फॉलो की होगी कि जनवरी में सिर्फ शोर पड़ा था, फरवरी में इंडिया में फर्स्ट केस आ गया, सो ऑन सो फोर्थ, इवन मार्च में तो हमारे भी इधर लॉकडाउन लग गया था। So this is how China basically is a communist nation. They control everything, control the media, control the people, control the politics. ठीक है, वहां पे मतलब पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट अलग अलग नहीं है, सेम ही है। यहाँ पे स्टिल वी हैव अ चॉइस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के, बीजेपी है, कांग्रेस है, मैम आप हो यस, गई, वन राइट। गवर्नमेंट रूल है। हाँ, वहां पे सिंगल पार्टी है। So the CPC, that is the Chinese Communist Party, that is the same as even the government. And अभी आपने देखा होगा जो उनका even they keep changing the constitution के जो करंट उनका प्रेसिडेंट है जाई जिनपिंग, उसकी ही टर्म चलती रहे, राइट। उन्होंने ये प्रोविजन ही खत्म कर दी कि फिर से इलेक्शंस हो। तो सिमिलरली अब हांगकांग और चाइना क्या रोल, इनका क्या शो डलता है कि हांगकांग वांट्स टू रिटेन the British system. Why? Because they are definitely enjoying more freedom in that. They are enjoying more rights. They are enjoying more liberty. But China wants to impose the same rules as they are in China. ठीक है, तो इसका क्या होता है कि बहुत then protests are there because they want to retain that democratic form, but China wants to impose the Chinese form of government and working there. तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इवन वायलेंट प्रोटेस्ट काफी हुए थे बीच में। इनके जो लीडिंग जो लीडर्स हैं या प्रोटेस्टर्स हैं या जो भी हु आर स्पीयर हेडिंग द मूवमेंट, उनको ये जेल में डाल देते हैं, कुछ ना कुछ इनका इशू चलता रहता है, राइट। So that was quite a long story to explain this one question, but yes, you can read more about it if you are interested. ऐसे ना by and by if you keep reading you will realize that आपको over time काफी knowledge हो जाएगी कि okay what is happening in the world around me, right? Knowledge भी होगी, and after that once you pick up the newspaper and read, आपको हर एक न्यूज का कॉन्टेक्स्ट भी समझ आएगा कि अच्छा चाइना का ये इशू है, आपको उसकी हिस्ट्री पता होगी कि ओके इसका क्या इशू है, कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, राइट। यू विल नो ऑल द what was happening earlier, what is happening now, and you will also be able to after some time be able to tell कि इसका future में क्या होगा। Now we know, see China is going to get its way, so it will make sure, if not immediately, but it will make sure in steps or gradually it is able to include Hong Kong within itself, right? Similarly जैसे चाइना एंड ताइवान का भी काफी इशू चलता रहता है। ताइवान को मैम कुछ यस, कंट्रीज डू नॉट रिकॉग्नाइज इट एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है, उसको पार्ट ऑफ चाइना ही कंसिडर करते हैं, राइट। ऑलराइट, लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन। Which one is the world's highest altitude civilian airport? So these Chinese names are quite confusing. So is it in Leh or is it in China or none of the above? हाँ जी, A option. मैम बी। Some option A. option A. All right, you are right. So it is this, I know कि ले वाला ना काफी देर पहले था। उसके बाद चाइना जो उनका एरिया ना, ये वाला तिब्बत वाला, इसमें वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवेज, रोड कनेक्टिविटी, दे आर वर्किंग अ लॉट ऑन दैट, एयर कनेक्टिविटी, राइट। आपको इवन ये तिब्बत का भी इशू पता होगा। तिब्बत वाज अर्लियर काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है, थोड़ा सा ब्रिटिश के रूल के अंडर था बट नॉट कंप्लीटली। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन इसको कहते थे, ठीक है, लासा ऑटोनोमस रीजन कह लो। फिर क्या हुआ, ग्रेजुअली चाइना टुक ओवर। सो देयर इज दिस मूवी 7 years in Tibet. Has anyone seen it? ब्रैड पिट है उसमें मूवी में। हाँ जी बच्चे, यस और नो? नो मैम मैम। नहीं। वैसे मूवी थोड़ी स्लो है, पहले की बनी हुई है, तो अभी आजकल के टाइम में आपको लगेगा कि काफी स्लो है एंड बहुत लंबी भी बनाई हुई है, बट उसमें ना ये सारा इशू बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है जब चाइना ने टेक ओवर किया था तिब्बत को।
ठीक है, तो अभी तो तिब्बत की जैसे जो उनकी एक सीट इन एग्जाइल है गवर्नमेंट की, दैट इज इन धर्मशाला मैक्लोडगंज, जो दलाई लामा है वो वहां पे रहते हैं, ठीक है। बट पहले उनका बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था, बट जैसे ही ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, तो चाइना सॉ दैट टाइम ओके सो दिस इज यहाँ पे पावर वैक्यूम है कि यहाँ पे जो है इधर की गवर्नमेंट दैट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। पहले तो ब्रिटिश उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है, कंप्लीटली रूल नहीं कर रहे थे, बट एक वैसा अरेंजमेंट था कि ब्रिटिश आर्मी वाज हियर, राइट, दे वर मैनेजिंग द अफेयर्स समवॉट। वंस ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947, वहां पे इश्यू स्टार्ट हो गए एंड ग्रेजुअली चाइना ग्रेजुअली स्लोली करते करते दे कंप्लीटली टुक दैट एरिया ओवर, उन्होंने उसको अनेक्स ही कर लिया। एंड जो वहां से जो हमारे सारे लीडर्स थे जैसे दलाई लामा हो गए, स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, दे हैड टू फ्ली एंड कम टू इंडिया एंड टेक रिफ्यूज हेयर, राइट। तो अभी भी इंडिया ने ही उनको रिफ्यूज दिया हुआ है। उनकी जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहते हैं उसको, दैट इज इट्स हेडक्वार्टर्स आर बेस्ड इन मैक्लोडगंज। तो आप में से गए होंगे मैक्लोडगंज धर्मशाला, हैव यू बीन देयर? हाँ जी, यस और नो? नो मैम। चलो, आई होप यू गेट अ चांस टू विजिट दैट सून, क्योंकि वहाँ पे काफी तिब्बतन कल्चर है, इनके टेम्पल्स हैं, राइट, जो दलाई लामा के मेन हेडक्वार्टर्स है वो भी वहीं पर है, ठीक है। तो वहाँ पे बुद्धिज्म का भी काफी ज्यादा अब मतलब सेंटर्स हैव कम अप, so there is this meditation center there where they completely teach you about Buddhism, Buddhist studies, right, their way of living and so on and so forth. So see, because now they know, जो तिब्बतन्स हैं उनमें ये एक चीज है कि we are being ruled, कि हमें हमारी कंट्री वापस चाहिए। तो इसीलिए चाइना वहां पे अपना कंट्रोल मेंटेन करने के लिए क्या कर रहा है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कर रहा है, ठीक है। बाकी वो बॉर्डर एरिया भी आ जाता है, तो इंडिया नीचे बॉर्डर है, इंडिया और चाइना वी आर नॉट ऑन वेरी गुड टर्म्स, राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि कहीं भी अगर हमारी कोई भी उनके साथ कोई स्कर्मिश होती है या कोई आर्ग्यूमेंट होती है, इवन छोटी सी कह लो सीज फायर वायलेशन होती है, राइट, सीज फायर वायलेशन इज के नो डाउट वी हैव दिस अग्रीमेंट कि यहाँ पे कोई फायरिंग नहीं होगी, जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, वी आर नॉट सपोज टू फायर एट ईच अदर, राइट। सो सीज फायर एग्रीमेंट कहते हैं इसको, सीज फायर इज के स्टॉप ऑफ फायरिंग, सीज का मतलब स्टॉप होता है, ठीक है। तो इसीलिए नो डाउट वी हैव दीज इन प्लेस, बट येट वी नीड टू ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, राइट। तो चाइना भी इस बॉर्डर एरिया पे बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, दिस इज व्हाट इंडिया शुड आल्सो बी डूइंग, बट इंडिया इज नॉट डूइंग दैट, राइट। तो यही हमारा इंडिया का क्रिटिसिज्म होता है कि वी डू मेक प्लान्स कि हमने चाइना से पूरा मुकाबला करना है, बट आर वी रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट। सो दिस इज व्हाई this infrastructure development becomes very important, so that in case of any disagreement with the neighboring country, आप वहां पे अपनी फोर्सेस जल्दी से जल्दी मोबिलाइज कर सको। टैंक्स जाने हैं, राइट, तो टैंक्स वगैरह जाने के लिए रोड्स प्रॉपर चाहिए। सिमिलरली यू नीड एन एयरपोर्ट ऑल्सो इफ यू वांट योर एयर फोर्स टू रीच देयर, तो आपको उसके लिए बेस चाहिए होगा। तो इसीलिए जो बॉर्डर एरियाज में डेवलपमेंट का बहुत ध्यान रखा जाता है, राइट। So we'll move on to the next questions, और हम अपने next session में जब भी जीके की करेंगे discussion उसमें कर सकते हैं, right? So time is about to end now, so I'll just stop sharing the screen. So yes, I hope you feel this session was informative, it was productive for you. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So I hope you are fond of GK, because I really do like reading about such facts and learning more about it, क्योंकि कहीं से और facts निकलते हैं, so you end up your knowledge ends up getting widened, right? तो आपकी knowledge तो पक्का ही इससे increase होती है। So we'll meet in the English class, ठीक है, उसमें भी कुछ थोड़ा Yes. easy topic ही करेंगे, हम ज्यादा मुश्किल नहीं करेंगे। So I'm ending the class now, all right? Current affair. Yes, ma'am. English की क्लास में current affairs कर ले। चलो नेक्स्ट No, क्लास ma'am, कुछ और एमपीटी की नेक्स्ट क्लास में करंट अफेयर्स कर लेंगे, दैट इज गुड आइडिया, ठीक है। सो जो भी पिछले मंथ के करंट अफेयर्स होंगे ना, उनमें से मैं हाइलाइट्स पिक कर लूंगी, ठीक है।